اس لیے ہم لوگ یہاں سے جو ہے ہجرت کر جائے، ہم لوگ یہاں سے جو ہے دوسرے ملک کا دورہ کیا جائے۔ اے ملت کے نوجوانوں، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں لشکر لے کر کے پہنچے، جب دریا کے پاس پہنچے پانی ادھر سے ادھر بہ رہا تھا۔ اللہ اللہ، اب کیا ہوتا ہے؟ سب نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس لاٹھی کو مارو دریا پر۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو مارا، اسی پر راستہ پیدا ہوتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ تو رب تبارک و تعالی اپنی انبیاء کرام علیہ السلام سے بہت محبت فرمایا کرتے ہیں۔ تو اے لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سارے لشکر کو لے کر کے پار دریائے نیل کو پار کر رہے ہیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان جو ہے تکلیف میں پڑتا ہے، انسان جو ہے مایوسی کے عالم میں ہوتا ہے، تو رب ضرور مدد فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ تو رب کا قرب حاصل ہوگا جب مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم اچھے عمل کریں گے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تب تو مدد آئے گی۔ تو اے ملت کے نوجوان، سارے کے سارے لوگوں نے رب تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی، کہے اے مولا، اے رب تبارک و تعالیٰ، کوئی جو ہے انبیاء نبی کریم کو بھیج دے جس سے ہم لوگ جو ہے بچ سکے۔ اے ملت کے نوجوانوں، رب تبارک و تعالیٰ بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہا اے موسیٰ جا فلاں جگہ ایک آدمی آوارہ قسم کا ہے، بہت گنہگار ہے، بہت خطاکار ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے تڑپا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو اے ملت کے نوجوانوں، جیسے ہی یہ دعا رب تبارک و تعالیٰ بندے کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قبول دعا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نوجوان، جتنا جلد ہو سکے اس محلے کو چھوڑ کر چلا جا۔ اللہ اللہ۔ اے نوجوان، آپ سے کہا جائے کہ اس جلال پور بستی سے آپ چلے جائیے تو پوچھیے گا نا وجہ کا ہے ہم چلے جائیں؟ پوچھے گا نا میرے بھائی جان، ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، پوچھیے گا کہ بھائی اوے جلال پور کہیے چاہے جلال بسنت، جلال بسنت ہے، ارے پور کہیے چاہے جلال۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ تو جلال بسنت کے غیر مسلمانوں ذرا غور کرو، آپ جلال پور یا جلال بسنت کے پھر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے پھر میں لگے تو کتنا کامیاب ہو جائے ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ گاؤں کے پھر میں لگے ہوئے ہیں، اس پہ لڑ رہے ہیں۔ ارے لڑنا چاہیے تو ہم نماز پڑھیں گے بھائی، لڑنا چاہیے ہم آزاد دیں گے بھائی، اس پہ نہ لڑنا چاہیے۔ ارے لڑنا چاہیے ہم محفل پاک میں جلدی آگے بیٹھیں گے، اس پہ آنا چاہیے۔ لیکن اے مومنو ذرا غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو انسان ڈر کر کے بیٹھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اے ملت کے نوجوانوں، دعا کی گئی، رب تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کے نوجوان سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، محفل کو چھوڑ کر تو یہاں سے چلا جا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں چلا جاؤں؟ کہا کہ رب کا حکم ہے، کہ رب کا حکم ہے اس لیے تو چلا جا۔ دیکھیے سب انسان گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، پھر بھی رب کو سب پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت آپ کو پیدا کیا ہے تو سب سے محبت فرماتا ہے۔ تو جیسے ہی سنا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تو اس بستی سے نکل جا، وہ جانے لگا اور دوسرا بستی میں چلا گیا۔
जब दूसरा बस्ती में चला गया अल्लाह का, फिर हुक्म होता है कि जाओ उससे कहो कि वो बस्ती को भी छोड़कर चला जाए। अल्लाह अल्लाह, जैसा ही हुक्म था उस बस्ती से कहा कि इस बस्ती को मैं छोड़कर अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते मैं जा रहा हूँ। कोई अल्लाह के वास्ते जो है नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, अल्लाह के वास्ते बहुत से लोग जो है जुमा की नमाज में अपने घर में बैठे रहते हैं, जुमा की नमाज में अपने जो शौहरों को माए बहनी नहीं कहती है कि ऐ मेरे शौहर नामदार, तू तो अल्लाह का वफादार बंदा है, तू तो रसूलुल्लाह का आशिक रसूल है, क्यों नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है? अरे हम पर नमाज फर्ज होती तो मैं भी मस्जिद में जाती, मना कर दिया गया कि औरतें घर में नमाज पढ़े। अरे मर्द को कहा गया कि जाके मस्जिद में नमाज पढ़े, तो जाना चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए, हर इंसान को जाना चाहिए। और जुमा की नमाज फर्ज है तो वहाँ जाकर के वहाँ खुतबा सुनना है, वहाँ पढ़ना है। लेकिन मोमिन बंदे कुछ लोग हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, मैं उस घर को आग लगा दूँ जो लोग जुमा की नमाज में हाथ नहीं हुए। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने आग तो नहीं लगाई, इससे ये क्या साबित होता है कि अल्लाह के रसूल उस इंसान से कितना नाराज़ है जो नमाज जुमा की हो रही है, घर में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, बच्चों के साथ है, बीवी के साथ बैठा हुआ है और दुनियादारी में लगा हुआ है। अरे आखिरत की याद होती तो जुमा की नमाज में हाजिर होता, आखिरत की खौफ होता। कैसे खौफ होगा? नमाज पढ़ने के लिए जुमा की नहीं गया, उस्ताद गिरामी के पास पढ़ने के लिए नहीं गया, अलमारी में दीन के पास बैठने के लिए नहीं गया। अगर बैठा होगा तो समझ जाता कि अल्लाह उसके रसूल का क्या फरमान है। मजलिस में ये ना देखने के लिए जाएं कि किसका लड़का है जो तकरीर कर रहा है, कौन अच्छी तकरीर करता है और किस लड़के की आवाज सुरीली है। हमारी ये नियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप उसकी बातों पर गौर करें, उसके करने पर दिमाग हाजिर करें कि बयान करने वाला कुरान और हदीस के मुताबिक बयान कर रहा है कि नहीं। बड़ों का कौल है कि कहने वाले को नहीं देखना चाहिए, जो बात कर रहा है उसको बहुत सुनना चाहिए। महफिल में ये ना देखे कि कौन आज, अरे देखे कि वो बात क्या कह रहा है, उस पे गौर करो। लेकिन इंसान सोचता है का थोड़ा सा पढ़ लेता है और समझता है कि सबसे बड़ा पढ़ाकू बंदा। तू कैसा बंदा है? अरे बंदा वही होता है जो इसके रसूल में अदब सीखा रहता है। इसके रसूल जो होता है उसके दिल में वो अदब एहतराम से बातें किया करता है, अदब से आपसे लगाव रखता है। और माँ बाप से वफादार बच्चे वही होते हैं जो अपने गर्दनों को झुका कर अपने माँ बाप के साथ पेश होते हैं, क्योंकि कुरान कहा इम्मा यबलुगन्ना इंदका किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तहरिम वला कुल। अगर तेरे सामने ये दोनों माँ बाप या उनमें से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें कभी उफ भी मत कहना, यानी झिड़कना नहीं, उनसे अदब एहतराम के साथ गुफ्तगू करना और उनके सामने शफकत व इनकिसारी के साथ झूठे रहना और उनके लिए ये दुआ करते रहना, रब्बहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ हमारे परवरदिगार उन दोनों पर रहमत नाज़िल फरमा। ऐसा दुआ करना चाहिए। लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे तब भी तो दुआ करेंगे सही से। अरे नहीं पढ़े लिखे तब भी दुआ कीजिए, रब दिल की बातें को सुनता है। रब जो है हर बात आप अंग्रेजी में बोलिए तभी सुनता है, भोजपुरी में बात कीजिए तभी सुनता है। अपनी जो मादरी जबान में बातें करते हैं, रब की बातों करते हैं, वो रब सबकी दिल की बातों को सुनता है कि मेरा बंदा क्या मांग रहा है, मेरा बंदा क्या पढ़ रहा है। तो इन मिल्लत के नौजवानों, आपको दावत दी जाती है कि फलां साहब के दरवाजे पर जाना है तो जाना चाहिए, इसलिए कि दावत पहुंच गई है तो पहुंचना चाहिए। क्योंकि रब के महफिल, रब तबारक व तआला के रसूलुल्लाह के महफिल में वही बैठते हैं जो इसके रसूल दिल में लिए रहते हैं। दिल जिसके दिल में इसके रसूल है वही हाजिर होता है। बहुत उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, आप हजरात को मैं 2 मिनट में रुखसत हो जाऊंगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हमारी तकरीर को हमेशा सुना करते हैं। मैं जो बयान कर रहा हूँ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहे कि एक शख्स तू तीसरी
बस्ती से निकल जाओ। वहाँ कोई ज़मीन ऐसा था, बिल्कुल रेतीला ज़मीन था। धूप इतनी शिद्दत की थी कि इंसान अगर धूप में खड़ा कर दिया जाए तो इंसान प्यास के मारे पानी मांगने लगे। जाहिर सी बात है, काम करता है मिस्त्री, कमता है, थोड़ा थोड़ा कहता है पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, फौरन जाते हैं पानी देते हैं। कितना तरफ होती है। अब इंसान को हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कहे चला जा। वो बस्ती में कोई वहाँ था नहीं, बिल्कुल रेतीला ज़मीन था। धूप की शिद्दत इतनी बढ़ती है, वो तरफ जाता है, तरफ करके अपने गुनाहों पर जो है बहुत मजबूर हो जाता है कि काश के मैं अच्छे काम किए होते, काश मेरी अम्मी यहाँ होती, काश कि मेरी बीवी वहाँ होती, मुझे तबीब के पास ले जाती, मुझे डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए ले जाती। अल्लाह अल्लाह, रब से दिल ही दिल में दुआ कर रहा है, ए रब तबारक व तआला, मैंने जो तेरी बहुत नाफरमानी की है, मैंने जो है अपने वालिदैन को बुलाया है, मैंने जो है हर इंसान को तकलीफ पहुंचाया है, मैंने जो है तेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले जो आए थे उसे सताया है, मैंने जो है हर इंसान को सताया है। ए रब तबारक व तआला, मुझे जो है माफ फरमा दे, आज के बाद किसी को सताऊं। रब तबारक व तआला बहुत मोहब्बत फरमाता अपने बंदों से, इसलिए मोमिनो जितना जल्द हो सके अपने रब को जो है सबको मनाना बहुत मुसीबत है, रब को मनाना आसान है। सुभान अल्लाह, रब बहुत जल्दी मान जाता है बंदों से, इसलिए कि 70